پچھلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا کہ کس طرح سے قاصد بادشاہ رازرک کے پاس پہنچا اور تمام تر صورتحال اس کے گوش گزار کی۔ اس کے علاوہ 2 پادری بھی اس کے پاس آئے اور تالا لگانے کا کہا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں تالا نہیں لگاؤں گا بلکہ اسے کھولوں گا، جبکہ تمام تر درباری بھی پریشان ہو گئے۔ جس کے بعد وہ محل سرا میں چلا گیا اور وہاں پر جا کر یہ سوچنے لگا کہ اس نے فیصلہ تو لے لیا ہے، لیکن اب کس طرح سے اس کے اوپر عمل درآمد کروائے، اور اسی وسوسے میں مبتلا تھا کہ ملکہ عالیہ تشریف لے آئیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جمیل سیریز، فاتح اندلس طارق بن زیاد سیریز کی یہ 7ویں ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین گرامی، فوراً ہی ملکہ آ گئیں اور وہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ملکہ نوعمر تھی، زیادہ سے زیادہ 20 سال کی عمر تھی، نہایت حسین تھی، اس کے چہرے سے حسن کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ چہرہ گول اور پیشانی چوڑی تھی، آنکھیں بڑی بڑی اور زیادہ سیاہ اور چمکدار تھیں۔ وہ نہایت بھڑکدار ریشمی لباس اور جواہرات کے زیورات وغیرہ پہنے ہوئے تھی۔ اس کے گلے میں ایک توق تھا جس میں بیش قیمت موتی اور لال جڑے ہوئے تھے۔ وہ چمک رہا تھا اور اس کی چمک سے اس کا چہرہ خیرہ ہو رہا تھا۔ اس ملکہ کا نام نائلہ تھا۔ دنیا بھر میں اس کے حسن کی مثال نہیں ملتی اور اس کے بے مثل توق کی شہرت تھی۔ وہ اٹھلاتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، نظروں کے تیر برساتے ہوئے بڑھتی چلی آئی۔ رازق نے بڑھ کر پیار کیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کے بعد دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ نائلہ نے کہا، میں نے سنا ہے آپ نے عجیب گنبد کھولنے کا ارادہ کیا ہے۔ رازق بولا، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ نائلہ نے کہا، مگر آپ اسے نہ کھولیں تو بہتر ہے، شاید اس لیے کہ اس کے متعلق نہایت عجیب و غریب پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ نائلہ نے کہا، جی ہاں، مجھے میری دایا بتایا کرتی تھی کہ اس گنبد کو جو بھی بادشاہ کھولے گا وہ سب سے آخری بادشاہ ہوگا۔ رازق نے کہا، تم فکر نہ کرو، یہ پیشن گوئیاں اس وجہ سے کی گئی ہیں تاکہ کوئی اسے کھول کر اس کے اندر کا خزانہ نہ نکال لے۔ نائلہ نے کہا، تو کیا اس کے اندر خزانہ ہے؟ رازق نے کہا، یقیناً خزانہ ہے۔ نائلہ نے کہا، لیکن یہ محض قیاس ہے۔ رازق بولا، اور تم دیکھ لو کہ یہ قیاس نہ تھا۔ نائلہ نے کہا، مگر میری التجا ہے کہ آپ اسے نہ کھولیں۔ رازق نے کہا، میں ضرور مان لیتا، لیکن میں نے بھرے دربار میں اس کے کھولنے کا اقرار کیا ہے، اور اب اگر میں نہ کھولوں تو دنیا مجھے بزدل کہے گی، اور یہ بات شاید تم کو بھی اچھی معلوم نہ ہو کہ اندلس کا بادشاہ بزدل کے نام سے یاد کیا جائے۔ نائلہ نے کہا، اللہ کی مرضی۔ رازق بولا، ہاں، خدا کی مرضی یہی ہے۔ اتفاق سے نائلہ کی نظر اسی مراسلے پر پڑ گئی جو کوچ پر رکھا تھا۔ یہ وہی مراسلہ تھا جسے چھپانے کے لیے رازق نے تلاش کیا تھا اور باوجود ڈھونڈنے کے نہ ملا تھا۔ نائلہ نے کہا، یہ کس کا مراسلہ ہے؟ یہ سنتے ہی رازق کا رنگ فک ہو گیا اور وہ کچھ جواب نہ دے سکا۔ نائلہ اسے دیکھنے کے لیے اٹھی۔ رازق گھبرا گیا اور اس نے کہا، رہنے دیجئے، یہ مراسلہ آپ کے دیکھنے کا نہیں ہے۔ نائلہ نے ضد کرتے ہوئے کہا، میں تو ضرور دیکھوں گی۔ اس کے کہنے کے ساتھ ہی اس نے بڑھ کر وہ مراسلہ اٹھا لیا۔ رازق شرم و خوف بھری نگاہوں سے نائلہ کو دیکھنے لگا۔ نائلہ نے مراسلہ کھولا۔ وہ ابھی اسے پڑھنے بھی نہ پائی تھی کہ رازق نے بحاجت آمیز انداز میں کہا، میری پیاری، تم اسے نہ پڑھو۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس چیز سے منع کرو اس کو ضرور ہی کرے گا۔ لہٰذا نائلہ کو جتنا رازق منع کرتا تھا اتنا ہی اسے اس کے دیکھنے کا شوق بڑھ رہا تھا۔ نائلہ نے سنا ہوا تھا کہ رازق ہوس پرست بدکار ہے، لیکن ابھی تک اسے اس کی نسبت تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ رازق نائلہ سے اس لیے بھی ڈرتا تھا کہ پادریوں کی جماعت اس کی پشت پر تھی۔ اس زمانہ میں اندلس کے اندر پادریوں کا بڑا زور تھا۔ ان مذہبی لوگوں کی ایک بڑی جماعت قائم ہو گئی تھی اور اس جماعت نے عوام کے دلوں میں کافی اثر و رسوخ پیدا کر لیا تھا۔ بادشاہ کے احکام کی ان کے سامنے کوئی وقت نہ تھی۔ رازق سے پہلے اندلس کا بادشاہ ڈنڈرا تھا۔ وہ خاندان گھات سے تھا۔ گھات ان مشہور وحشی قوموں میں سے ایک قوم تھی جنہوں نے روما کی زبردست سلطنت کو تخت و تاراج کر دیا تھا۔ گھات ایک ایشیائی قوم تھی جن کی 2 شاخیں ہو گئی تھیں۔ ایک ایسٹر گھات تھی، یعنی مشرقی گھات، یہ ابطالیہ پر مسلط ہو گئی، اور دوسری وسی گھات، مغربی گھات، جو اندلس پر حکمران ہو گئی تھی۔ شاہ ڈنڈرا وسی گھات سے تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ملک میں پادریوں کا اقتدار روز افزوں ترقی پر ہے تو وہ ان کے بیخ کنی کے در پہ ہو گیا۔ اس میں شک نہیں کہ ڈنڈرا رحم دل تھا اور رعایا کے ہر فرد کو، خواہ وہ کسی قسم اور کسی طبقہ کا کیوں نہ ہو، ایک نظر سے دیکھتا تھا۔ اس کی یہی بات پادریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ اندلس میں یہودی اور عیسائی 2 قومیں آباد تھیں۔ پادری یہودیوں کو مقہور و ذلیل کرتے تھے۔ ڈنڈرا کو ان کی یہ بات بری معلوم ہوتی تھی اور وہ مظلوم یہودیوں کی طرفداری کرتا جاتا تھا۔ پادریوں نے اس بادشاہ پر یہود نوازی کا الزام لگا کر اسے تخت سے معزول کر دیا تھا اور رازق کو پادریوں کی بدولت تخت نصیب ہوا تھا۔ اس کی ملکہ نے پادریوں کی جماعت کو اپنے ساتھ کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رازق اس سے ڈرتا تھا، کیونکہ اسے خوف تھا کہ کہیں نائلہ اسے بھی ڈنڈرا کی طرح پادریوں سے معزول نہ کروا دے۔ نائلہ نے ضد کے لہجے میں کہا، میں اسے ضرور پڑھوں گی۔ رازق نے کہا، لیکن تم اسے پڑھ کر رنجیدہ ہوگی۔ نائلہ نے کہا، یہ تو میں جانتی ہوں۔ رازق بولا، مگر عقل مندی نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کر غم و فکر اٹھائے۔ نائلہ نے کہا، لیکن مجبوری ہے۔ رازق بولا، تم کو کوئی مجبور نہیں کر رہا۔ نائلہ نے کہا، یہ مراسلہ کس کا ہے؟ رازق نے کہا، کاؤنٹ جولین کا۔
نائلہ بولی کیا لکھا ہے اس میں؟ رازق کہنے لگا کہ اگر یہ بات بتانے کی ہوتی تو منع کیوں کرتا پڑھنے سے؟ نائلہ نے کہا سنو، جب سے فلورینڈا یہاں سے گئی ہے اسی وقت سے میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگی ہوں۔ رازق نے کہا شاید اس لیے کہ وہ تمہیں یاد آتی ہے۔ نائلہ نے کہا وہ حسین نیک دل لڑکی ہے، یاد کرنے کے قابل ہے، لیکن میری بے چینی تو کسی اور ہی سبب ہے۔ کس سبب؟ رازق نے پوچھا۔ نائلہ کہنے لگی مجھے خوف ہے کہ شاید تم نے اسے پریشان کرنا چاہا تھا، وہ عصمت مآب تھی اس لیے چلی گئی ہے۔ رازق اس بات کا کیا جواب دیتا؟ اس کا سیاہ اعمال نامہ اس وقت نائلہ کے ہاتھ میں تھا۔ اگر وہ جھوٹ بولتا تو وہ پڑھ کر سب معلوم کر لیتی، اور اگر سچ بولتا تو کیسے اپنی زبان سے اپنی بدعمالی کا اقرار کرتا؟ نائلہ نے کہا تم چپ ہو گئے، کیا میرا اندیشہ صحیح تھا؟ رازق نے کہا اس ذکر کو جانے دو بیگم، ذرا سنو، اگر تم یہ مراسلہ مجھے واپس کر دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ عجیب گنبد نہیں کھولوں گا۔ نائلہ بے ساختہ ہنس پڑی اور اس نے کہا اگر آپ اسے کھولیں تو میرا اس میں کیا نقصان ہے، اور اگر نہ بھی کھولیں تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ رازق نے کہا لیکن اس کے پڑھنے سے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نائلہ نے کہا جس قدر تم اس کے نہ پڑھنے پر اصرار کرتے ہو اسی قدر میرے اندر اشتیاق پیدا ہو رہا ہے۔ اگر تم اس وقت جب کہ میں نے اسے دیکھا تھا اور دریافت کیا تھا کہ یہ کس کا مراسلہ ہے صاف صاف بتا دیتے تو میں اس کے پڑھنے کا خیال تک نہ کرتی۔ رازق نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ نائلہ بولی اب غلطی کا خمیازہ بھگتو۔ یہ کہہ کر اس نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ رازق بے حد بے چین، پریشان اور مضطرب ہو گیا، لہٰذا اس نے پھر کہا اسے مت پڑھو بیگم۔ نائلہ نے غصے میں آ کر کہا دیکھو تم خاموش رہو، میں اسے ضرور پڑھوں گی۔ اب رازق کو مزید کچھ کہنے کی جرت نہ ہو سکی، وہ نائلہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور نائلہ اسے پڑھنے لگی۔ وہ پڑھتی جاتی اور اس کا چہرہ غیظ و غضب سے سرخ ہوتا جا رہا تھا، نیز آنکھوں سے چنگاریاں سی برس رہی تھیں، جوں جوں وہ غضبناک ہوتی جا رہی تھی تو رازق کے چہرے کا رنگ فک ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر نائلہ نے اسے ختم کر لیا۔ اب اس کی ہوش ربا نگاہوں سے شعلے نکلنے لگے تھے۔ اس نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کنیزوں کی طرف اشارہ کیا، وہاں سے چلے جانے کے لیے۔ تمام پرستاریں نہایت سکوت کے ساتھ سر تسلیم خم کر کے وہاں سے چلی گئیں۔ جب فقط نائلہ اور رازق رہ گئے تب نائلہ نے قدرے درست لہجے میں کہا یہ تمہارا سیاہ اعمال نامہ ہے۔ رازق کا خوف دور ہو چکا تھا، وہ بڑا چال باز تھا، عمر کی پختگی نے اسے بہت حد تک عیار و مکار بنا دیا تھا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ اس وقت نائلہ کا مقابلہ کیسے کرنا ہے جو کم سن اور بھولی سی ہے۔ میں اسی لیے کہتا تھا کہ اسے نہ پڑھو، جولین بڑا ہوشیار آدمی ہے، اس نے ایسی چال چلی ہے کہ جس سے عوام کی نظروں میں میری وقت کم ہو جائے۔ نائلہ بولی مگر کیا اس سے اس کے خاندان کی بدنامی نہیں ہے؟ رازق نے کہا ضرور ہوگی، مگر اسی کا مقصد اسی طرح پورا ہوگا۔ نائلہ نے کہا اس کا مقصد کیا ہے؟ رازق نے کہا کیا تم بھول گئی ہو کہ اس کے عقد میں معزول بادشاہ کی بیٹی ہے اور وہ خواہش مند ہے کہ مجھے معزول کرا کے اپنے سسر کو تخت نشین کرا دے۔ بیگم صاحبہ یہ ایسی گہری چال ہے کہ جس کے سمجھنے کے لیے بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ نائلہ نے کہا مگر میرے خیال میں کوئی شخص کسی قیمت پر بھی اپنی بیٹی کے متعلق اس وقت تک ایسے الفاظ نہیں لکھ سکتا جب تک کوئی واقعہ نہ ہوا ہو۔ رازق نے کہا کاؤنٹ جولین خار کھائے ہوئے ہے اور وہ جو کچھ بھی کرے تھوڑا ہے۔ رازق سمجھ گیا کہ اس کا افسون کارگر ثابت ہونے لگا ہے، لہٰذا اس نے پھر عاجزی کے لہجے میں کہا پیاری مجھ پر اعتماد کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس لیے تو میں اس کے نہ پڑھنے پر مجبور کر رہا تھا کہ کہیں اسے صحیح نہ سمجھ لو، کیونکہ عورتوں میں رشک و حسد کا مادہ زیادہ ہے۔ نائلہ نے کہا مگر میں تو فلورینڈا سے دریافت کیے بنا اس کے متعلق کوئی رائے قائم نہیں کر سکتی۔ رازق نے کہا بالکل ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا تم نے، تم اس سے پوچھو اور اپنا اطمینان کر لو۔ سوچو تو صحیح، ایسا ہوتا تو میں فلورینڈا کو جانے دیتا؟ نائلہ نے کہا میں کچھ نہیں جانتی، میں تصدیق ضرور کروں گی۔ رازق بولا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ضرور تصدیق کرو، لیکن خفیہ کیونکہ اعلانیہ تصدیق کرنے میں میری رسوائی کا خدشہ ہے۔ نائلہ نے کہا میں سب سمجھتی ہوں۔ رازق نے کہا تم نے اس بات پر غور کیا کہ وہ مسلمانوں کو میرے ملک پر چڑھا لایا ہے، اس نے ضرور ان سے اپنا یا ڈھونڈرا کے لیے کوئی معاہدہ کر لیا ہوگا۔ نائلہ نے کہا یہ ممکن ہے؟ رازق بولا مگر میں ان کو شکست دے کر خود جولین پر حملہ کر دوں گا۔ نائلہ نے کہا اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ رازق بولا مگر ایک وعدہ کر لو۔ نائلہ نے کہا کیا؟ رازق بولا جب تک لڑائی اختتام کو نہیں پہنچتی اس وقت تک تم خاموش رہو گی۔ نائلہ نے کہا ایک شرط پر۔ رازق بولا وہ کیا؟ نائلہ نے کہا اقرار کرو کہ تم بھی کسی لڑکی کو نہیں ستاؤ گے۔ رازق نے کہا اقرار کرتا ہوں۔ نائلہ نے کہا میں بھی اقرار کرتی ہوں۔ رازق بولا شکر ہے، معاملہ بآسانی طے ہو گیا۔ نائلہ نے کہا ابھی شکر کا موقع نہیں ہے۔ رازق نے کہا کیوں؟ نائلہ بولی اس لیے کہ میں تحقیقات کروں گی اور اگر یہ سچ ثابت ہوا تو۔ رازق اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا، اسے غصہ آ رہا تھا، وہ فکرہ پورا نہ کر سکی۔ رازق بولا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ نائلہ نے کہا بس اس بات پر عارضی صلح سمجھو۔ یہ کہتے ہی وہ لوٹی اور چل پڑی۔ رازق کو اس کو کچھ اور کہنے کی جرت نہ ہو سکی، وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکل گئی تو اس نے ٹھنڈا سانس بھرا اور کوچ پر جا پڑا۔ رازق دن بھر متفکر اور پریشان رہا۔
बड़े हुए गम और फिक्र की वजह से उसने रात भर खाना तक भी न खाया, जिसके सबब से उसे रात को नींद भी कम आई। गोया ऐसे मालूम हुआ कि सिर्फ गुंबद के खोलने के इरादे से ही उस पर अंजुअलम और मसाइब आलाम का हुजूम हो गया है, लेकिन इस पर भी वो बसेत था और गुंबद खोलने के इरादे से बास न आया। उसने गुंबद को खोलने का मुसम्मम इरादा कर लिया। चुनांचे जब आफताब तुलू होकर जरा बुलंद हुआ तो उसने अपने मुशीरों, वजीरों, नीज चंद सवारों को तलब किया। ये बात तमाम शहर में मशहूर हो गई कि बादशाह ने इस गुंबद को खोलने का कसद कर लिया है, जो कि जब से बना है आज तक बंद पड़ा है और कभी नहीं खोला गया। हत्ता कि कैसर आज़म भी इसे खोलने की जुर्रत नहीं कर सका। जिस बादशाह ने भी इसे खोलने का इरादा किया वही या तो नागहानी मौत का शिकार हो गया या किसी बला में गिरफ्तार होकर इस काबिल ही न रहा कि इसे खोल सके। इस जमाने के ईसाई बड़े तोहम परस्त थे। सारे शहर के लोगों पर खौफ और हिरास फैल गया और हर एक ने समझ लिया कि अब इस मुल्क वालों पर तबाही नाजिल होने वाली है। इधर उस शख्स ने जो तदमीर का मरासला लाया था, मुसलमानों के अचानक आ जाने और ईसाइयों को शिकस्त देने का वाकया 2-4 आदमियों को सुना दिया था। जिन लोगों ने इस वाक़े को सुना वो बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने दूसरों को ऐसी रंग आमेजी से सुनाया कि जिसने भी सुना वही तरसा लरसा होकर रह गया। आमतौर पर लोगों ने यह समझ लिया कि चूंकि इनके बादशाह ने गुंबद के खोलने का अज़्म समीम कर लिया है, इस वजह से खुदा, फरिश्ते, वली नीस तमाम अच्छे लोग और पाक रूहें उनके मुखालिफ हो गई हैं और सबका कहरो गज़ब अंदलस पर नासिल होने वाला है। जब वो तमाम लोग आ गए जिन्हें रास्तक ने तलब किया था तो वो भी शाही लिबास पहनकर कसर से बाहर आया और इनके हमरा गुंबद की तरफ रवाना हुआ। जो लोग इसके साथ जा रहे थे वो सख्त खौफसदा थे। गोया यूं मालूम हो रहा था कि जैसे कोई निहायत जबरदस्त कुव्वत इनको तबाही के घड़े की तरफ खींच लिए जा रही है। सब खामोश और सहमे हुए थे। चाहते तो ये थे कि बादशाह को समझाएं और इसे बास रखने की कोशिश करें, लेकिन वो खूब जानते थे कि बादशाह ऐसे जिद्दी, सरकश और खुद राय है कि हरगिज़ नहीं मानेगा। इसलिए किसी को इससे कुछ कहने की जरूरत न हुई थी और सब चुपचाप इसके पीछे चले जा रहे थे। बादशाह की सवारी आम गुजरगाहों से शाहाना अजमत से गुजर रही थी और लोग इसे जाता हुआ देखकर किसी नागहानी आफत के आने का इंतजार कर रहे थे। ये शाही सवारी का जुलूस दारुस सल्तनत तली तला से निकलकर पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। कुछ दूर चलकर उन्हें गुंबद का कलश नजर आया, जो इस कदर चमक रहा था कि इसकी तरफ आंख भरकर भी नहीं देखा जा सकता था। चूंकि गुंबद ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच में वाक़ था, इसके लिए सवाए कलश के और कुछ नजर न आता था। ये लोग दामने को तय करके पहाड़ पर चढ़ने लगे। जो वो गुंबद के करीब होते जाते थे सब खौफ और दहशत से लरसते जाते थे। कुछ दूर चलकर ये एक लंबे दर्रे में दाखिल हुए जो बतदरीज बुलंद होता जा रहा था। घोड़ों की सुमों की आवाज से तमाम दर्रा गूंजने लगा था। थोड़ी देर में उन्होंने दर्रा अबूर किया और इन चट्टानों के करीब पहुंचे जिनके दरमियान ये अजीबो गरीब गुंबद था। ये एक घाटी में घुस गए और कुछ दूर चलकर इस कोहनुमा कला के करीब जा पहुंचे जिस पर गुंबद था। इस गुंबद के चारों अतराफ जरा फासले से ऊंची ऊंची चट्टानें थीं और एक ऊंचे पहाड़ी टीले पर गुंबद तामीर था। चूंकि घोड़े टीले पर नहीं चढ़ सकते थे, इसलिए उन्होंने घोड़ों को वहीं छोड़ा और बादशाह, वजीरों, मुशीरों वगैरह के साथ टीले के ऊपर पैदल चढ़ गया। उसने देखा कि गुंबद की दीवारें संगे मरमर और जबरजद से बनाई गई हैं, जो कि धूप से चमक रही थीं। जब ये लोग गुंबद के बिल्कुल करीब पहुंच गए तब उन्होंने इसकी दीवारों पर कुछ नसीहतें कंदा देखी, जो कि इस कदर साफ और शफाफ थीं कि मुद्दतें गुजर जाने पर भी आफताब और बारिश के दस्त दर्जियों से मामून और महफूज थीं। एक नसीहत पर रासरक की नजर पड़ गई। उसने पढ़ा लिखा था, जो किसी की नसीहत नहीं सुनता वो जरूर तकलीफ और परेशानी उठाता है। रासरक सर झुकाए हुए कुछ सोचने लगा। इससे जब से गुंबद के बूढ़े मुहाफिज आए थे, समझाया और नसीहतें किए जा रहे थे, मगर उसने किसी की बात न मानी थी। वो आगे बढ़ा। एक और नसीहत पर उसकी नजर जा पड़ी। लिखा था, जिद खुद राय है और खुद राय तबाही की जड़ है। वो डर गया। उसने नसीहतों को देखना ही छोड़ दिया। लेकिन कायदा है कि इंसान जिस चीज को देखना नहीं चाहता, फितरत उसे देखने पर मजबूर करती है और मजबूरन उसे बार बार देखना पड़ता है। रासरक भी बावजूद ये कि नसीहतों की तरफ देखना न चाहता था, कोई गैबी कुव्वत इसे देखने पर मजबूर कर देती थी और वो देख रहा था। चुनांचे फिर उसकी नजर एक नसीहत पर पड़ी। निहायत जली हरूफ में लिखा हुआ था, जो बादशाह अपने खैर ख्वाहों के मशवरे पर अमल नहीं करता वो अपने हाथों से अपनी कब्र खोदता है। इसे पढ़कर रासरक काम किया। उसने चाहा कि वापस हो जाए, लेकिन फिर उसे ये ख्याल आया कि राया उसे बुज़दिल कहेगी और वो इसी नजरिए के पेश नज़र दरवाजे की तरफ बढ़ता रहा। उसके साथी भी बास नसीहतों को पढ़ते जाते थे। वो चाहते थे कि अब भी बादशाह समझ जाए और गुंबद को खोलने से बास आ जाए, लेकिन किसी को इसे कुछ कहने की जरूरत न होती थी। आखिर ये लोग दरवाजे के सामने जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि गुंबद का दरवाजा निहायत आलिशान, ऊंचा और चौड़ा है और सिर्फ ये कि एक पूरा पत्थर तराश कर बनाया गया है। क्वाड़ लोहे के हैं और इनमें शाहाने सलफ के नामों के भारी भारी कफल पड़े हुए हैं। क्वाड़ों की कैफियत और कफलों की हालत से मालूम होता था कि अरसे दराज से वो खोले नहीं गए हैं और न खोलने की वजह से जंग आलूद हो गए हैं। ऐन फाटक के करीब दोनों बूढ़े हाथ सीने पर बांधे हुए निहायत खामोशी से आलमे इस्तगराक में खड़े थे। बादशाह को देखते ही वो सजदे में गिर गए।
क्या बादशाह ने अपनी अना के बरअक्स इस दरवाजे को खोला? शाह राजरक किस तरह से अपने काफिले के हमरा उस मकाम तक पहुंचा? गुंबद का दरवाजा निहायत आलिशान और ऊंचा था, जिसे खोला मुख्तलिफ नसीहतों पर इसकी नजरें पड़ी, जिसके बाद ये तजब्जुब का शिकार हुआ कि आया इसे खोले या ना खोले। लेकिन दिल ही दिल में ये डर भी रहा था, लेकिन अना परस्ती का शिकार था। जब फाटक के पास पहुंचा तो दोनों बूढ़े हाथ सीने पर बांधे निहायत खामोशी से आलम इस्तगराक में खड़े थे। बादशाह को देखते ही वो सजदे में गिर गए। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फाते अंदलस तारक बिन ज़ियाद सीरीज की ये 8वीं एपिसोड है। राजरक बोला, चाबियां साफ कर लें? एक बूढ़े ने कहा, जी हाँ, कल तमाम दिन इन्हें रगड़ते रहे, तब कहीं जाकर चाबियां साफ हुई। दूसरा बूढ़ा बोला, उन्हें साफ करने का वक्त नहीं मिला। राजरक ने कहा, बूढ़े, बहुत बड़ी गलती की तुमने। अगर तुमसे ये काम नहीं हो सकता था तो मुझे कह देते, मैं तुम्हारे साथ कुछ इमदादी भेज देता। दूसरा बूढ़ा बोला, हुजूर, हमारा ख्याल था कि आप हमारे आने के बाद इस पर गौर व फिक्र के बाद अपना इरादा मुलतवी कर चुके होंगे। राजरक ने कहा, लेकिन तुम नहीं जानते कि एक बादशाह अपना इरादा हरगिज़ मुलतवी नहीं करता। बूढ़े ने कहा, हुजूर, गुंबद का खोलना निहायत तकलीफ दे और नुकसान का बायस हो सकता है। राजरक ने कहा, कुछ परवाह नहीं, मैं ऐसी फजूल बातों पर यकीन नहीं रखता। दूसरे बूढ़े ने कहा, हुजूर, अपनी रियाया और मुल्क पर रहम खाइए। राजरक ने कहा, तुम बिल्कुल न घबराओ, कोई अंदेशे की बात नहीं है। पहले बूढ़े ने कहा, मगर हमारे दिल कांप रहे हैं। राजरक ने कहा, चूंकि तुम ज्यादा बूढ़े हो, पेशिन गोइयों पर एतमाद रखते हो, इसलिए ये बात है। दूसरा बूढ़ा बोला, मगर अक्सर पेशिन गोइयां सच साबित होती हैं। राजरक ने कहा, लेकिन मैं इसका कायल नहीं हूँ। वजीर बोला, मगर हुजूर? राजरक ने कहा, तुम क्या कहते हो? वजीर ने कहा, यही कि इस गुंबद को न खोलिए। राजरक बोला, ताज्जुब है, तुम मेरी तबीयत से वाकिफ नहीं, ऐसी बेहुदा बात कहते हो। वजीर बोला, हुजूर ने इस गुंबद पर लिखी हुई नसीहतें मुलाहिजा की हैं? राजरक बोला, हाँ, देखी हैं। ये इसलिए लिखी हैं ताकि इसे खोलने वाला इनसे खौफज़दा होकर इरादा मुलतवी कर दे। अब मजीद किसी को कुछ कहने की जुर्रत न हुई। राजरक ने कहा, इन मुहाफिजों से चाबियां लो और कफल खोलो। जी बेहतर, उसने अफसरदा दिली से कहा और मुहाफिजों से चाबियां ले ली, मगर वो खौफज़दा था, इस वजह से उसे खुद कफल खोलने की हिम्मत न हुई। उसने कई और मुहाफिजों को ताला खोलने के लिए बुला लिया और उन्हें ताला खोलने की हिदायत की। सिपाहियों ने चाबियां डालकर ताले खोलने की कोशिश की, लेकिन ताले चूंकि जंग आलूद थे, लिहाजा वो आसानी से न खुलते थे। मगर सिपाही थे कि पहम मसरूफ जदोजहद थे, वो इनके जंग छुड़ा कर खोल रहे थे। चूंकि एक कफल खोलने में काफी वक्त लग जाता था, इसलिए काफी देर लग जाती थी और करीब करीब तमाम दिन इनको ताले खोलने में लग गया। राजरक इनके करीब बैठा देख रहा था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द तमाम कफल खुल जाएं और वो गुंबद में दाखिल हो जाए। आखिर शाम के वक्त सिर्फ एक ताला बाकी रह गया और चंद सिपाहियों ने कोशिश करके इसे भी खोल दिया। इस आखिरी ताले के खुलते ही सिपाही पीछे हट गए और बादशाह उठ खड़ा हुआ। फिर वो सिपाहियों के हमरा दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस जमात ने दरवाजे पर पहुंचते ही क्वाड खोले और एक तरफ हट गए ताकि गुंबद के अंदर की खराब और समूम हवा खारिज हो जाए। जब जरा वक्फा गुजर गया तब राजरक उन्हें अपने हमरा लेकर अंदर दाखिल हुआ। ये एक वसी कमरे में पहुंचे। ये कमरा खाली था और चूंकि एक अरसा से बंद पड़ा था, इसलिए गर्दो गुबार से अटा हुआ था। ये बड़े और सामने वाले दरवाजे से निकलकर दूसरे कमरे में पहुंचे। इस कमरे में एक पीतल का बहुत बड़ा मुहिब और खौफनाक बुत खड़ा था। इसकी आंखें शोले बरसा रही थीं। इसके हाथों में एक लोहे का गर्ज था और वो इसे दम बदम मार रहा था। बुत इतना लंबा था कि उसकी टांगों के दरमियान में एक मेहराबी दरवाजा था जो कि इतना ऊंचा बना हुआ था जिसमें से बड़े कद का आदमी बखूबी गुजर सकता था। इसके पैरों वाले दरवाजे के सामने एक और दरवाजा नजर आ रहा था जो किसी कमरे का मालूम हो रहा था, मगर इस दरवाजे तक पहुंचना इस वजह से गैर मुमकिन था कि वो बुत जो गुर्स मार रहा था, किसी शख्स का एक कदम भी आगे बढ़ाना इसे मौत की दावत देना था। किसी दूसरी तरफ से कोई रास्ता न था। इन लोगों ने देखा कि इसके सीने पर सुर्ख हरूफ में लिखा था, मैं अपना फर्ज से मनसबी अदा कर रहा हूँ। राजरक ने इसे पढ़कर कहा, ए खौफनाक बुत, तलिस्मी गुंबद का राज मालूम करने आया हूँ। इससे मेरी मंशा इस गुंबद को गसंद पहुंचाना या इसकी तखरीब करना नहीं है, लेकिन बुत दस्तूर अपने काम में मसरूफ रहा और राजरक ने एक कदम बढ़ाया। इत्तेफाक से इसका पाँव एक हुक पर पड़ गया और इसके दबते ही बुत सीधा खड़ा हो गया। राजरक पीछे हटा। वो देखने लगा कि आया ये बुत हरकत करता है या नहीं, लेकिन बुत ने कोई हरकत न की। वो सीधा खड़ा हो गया था और आहनी गुर्स अपने दोनों हाथों में इस अंदाज से पकड़े हुए था जैसे कि वो हमला करने वाला है। इसकी सूरत, नीज इसकी डोल वगैरह सब खौफनाक मालूम हो रहे थे। आंखें अब भी अंगारों की तरह दहक रही थीं। राजरक और इसके साथी बड़े मगर जरा डरते हुए इस ख्याल से कि कहीं बुत फिर ना गुर्स मारना शुरू कर दे और वो सब के सब गुर्स के नीचे पिस कर न रह जाएं। मगर बुत ने हरकत न की और सब उनके पैरों वाले दरवाजे में निकलकर दूसरे में दाखिल हुए। इसके दूसरी तरफ एक कमरा था जिसकी दीवारें संगे मरमर की और छत सफेद गोल और डॉटदार थी। इसकी दीवारों पर कदे आदम से ऊपर अजीब अजीब नीज किस्म किस्म के बेशकीमत पत्थरों के टुकड़े नस्ब थे।
कमरे के अनवस्त में एक मेज रखी थी जो हरकले आज़म के हाथ की बनी हुई थी। ये पुराने जमाने की सनाई का निहायत बेहतरीन नमूना था, निहायत खूबसूरत थी। मेज पर एक छोटा सा संदूकचा रखा था। इस पर ये इबारत कंदा थी, इस गुंबद के तमाम मख्फियात इस बॉक्स के अंदर महफूज रहें। राज़िक ने कहा, वाह वाह, इतना छोटा सा संदूकचा और इसके अंदर तमाम राज, हाय सरबस्ता का खजीना है। वजीर ने कहा, मगर हुजूर यहाँ तो कोई खजाना नहीं है। राज़िक ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, अभी ये तुमने कैसे समझ लिया? इस संदूकचे को खोलने दो, मेरा ख्याल है कि खजाना का राज जरूर इसके अंदर बंद है। ये कहते हुए उसने फिर संदूकचे की तरफ देखा। ऊपर वाली तहरीर के नीचे इसे एक और इबारत नजर आई जो जरा बारीक थी। उसने झुक कर पढ़ा, इस बॉक्स को खोलने की जुर्रत सिर्फ एक बादशाह करेगा, मगर उसे होशियार और खबरदार रहना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर उसे ऐसे वाकयात नजर आएंगे जो मरने से पहले इसे पेश आने वाले हैं। ये पढ़कर चेहरा जर्द पड़ गया। इसके पास ही वजीर खड़ा था, उसने भी ये इबारत पढ़ ली थी। उसने दस्त बस्ता होते हुए कहा, हुजूर बस कीजिए, अब इस खतरनाक संदूकचे को न खोलिए। राज़िक, अब बाकी रह ही क्या गया है? गुंबद खुल चुका है और सिर्फ ये संदूकचा खोलना बाकी है। वजीर ने कहा कि इसके अंदर तमाम मख्फियात बंद हैं। राज़िक बोला, और मैं इनको ही मालूम करना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने संदूकचा खोल डाला। वो ये देखकर हैरान रह गया कि संदूकचे के अंदर एक चमड़े का लंबा फीता है जो कि लोहे की मेख पर लिपटा हुआ था। इसके दोनों तरफ तांबे की 2 तख्तियां लगी हुई थीं। चमड़े के फीते पर सवारों की तस्वीरें भी बनी हुई थीं जो नेज़ों, तलवारों, पेश कब्जों वगैरह से मुसल्लह थे। इनकी सूरतें नूरानी थीं, लेकिन बड़ी रौबदार फीते की पेशानी पर लिखा था, बदकिस्मत और बदअंदेश बादशाह देखकर उन लोगों को जो तुझे सर पर हुकूमत से नीचे गिराकर तेरे मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। राज़िक इस इबारत को पढ़कर दम बखुद रह गया और वजीर की तरफ देखने लगा। वजीर भी इस इबारत को पढ़ चुका था और वह बादशाह को तक रहा था। राज़िक ने शर्मिंदा होकर नजरें झुका लीं और अब जो इसकी निगाह फीते पर पड़ी तो वो निहायत सरत से घूमने लगा था। सब हैरत भरी नजरों से देखने लगे। देखते ही देखते एक मैदान नमूदार हुआ और इसके साथ ही शोर गुल की आवाजें भी सुनने लगी। मैदान में पहले कुछ बादल से उठे, गुबार छाया और जब वो दूर हुआ तो घोड़ा सवार आते जाते नजर आए। सब निहायत हैरत से देख रहे थे। फीते की तस्वीरें हरकत कर रही थीं और खाली मैदान कारज़ार बन गया था। अजीब जानगुदास वाकयात पेश आने लगे थे जो बिलतरतीब एक दूसरे के बाद नक्श पर नजर आते और मिटते चले जाते थे। उन्होंने देखा कि मैदान बहुत ज्यादा कुशादा हो गया है और इसमें एक तरफ मसीह सवार अंदलस का अलम उठाए सफ बस्ता है और दूसरी तरफ चौड़े चौड़े सवार और कुछ पैदल खड़े हैं। इनकी दाढ़ियां लंबी लंबी और चेहरे नूरानी हैं। कुछ लोग नेज़े और पेशकब्ज लिए हुए हैं और कुछ तलवारें। दफातन तबले जंग बजने लगा, नरसंगे और करने फोंके जाने लगे और इनकी मुहिब आवाजों से इनके कानों के पर्दे फटने लगे। अभी ये आवाजें गूंज ही रही थीं कि अल्लाह अकबर के पुरजोर नारे की आवाज आई। इस आवाज को सुनकर ये सब दहल गए। वो फीते की तरफ देख रहे थे। इनके देखते ही देखते हर दो फरीक ने हरकत शुरू की। तलवारें और नेज़े बुलंद होने लगे और खून का दरिया बहने लगा। आहो फरियाद की आवाजें आने लगी। खून आशाम हंगामा आराई दारोगीर बुलंद होने लगे। मसीह बहुत ज्यादा थे और मुसलमान बहुत कम, मगर इसके बावजूद ईसाई ही ज्यादा मर रहे थे और गनीम का एक आदमी भी मरता नजर नहीं आता था। राज़िक और इसके साथ इन लोगों को नहीं जानते थे। वो हैरान थे कि ये कौन लोग हैं और कहाँ से आ गए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि मसीहियों को शिकस्त फाश हो गई है। इनका झंडा जिस पर सलीब का निशान बना हुआ था जमीन पर गिर गया है। ईसाई लश्कर में सख्त अबतरी और बदहवासी फैली हुई थी। वो भाग रहे थे और ढीली अबाओं वाले इनके पीछे भाग भाग कर इन्हें तहे ते कर रहे थे। हसीमत खोरदा ईसाई चीख चिल्ला रहे थे, करीबुल मर्ग आहुजारी कर रहे थे। इनकी मुख्तलिफ आवाज़ों से मैदान गूंज रहा था। ये लोग इस खून आशा मंजर को देखकर एक दूसरे की तरफ हैरत से देख रहे थे। वो जो देख रहे थे उसे जादू का करिश्मा समझ रहे थे। वो नहीं जानते थे कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उन्होंने फिर फीते की तरफ देखा। उस वक्त इनकी नजर एक सवार पर पड़ी जो रेशमी लिबास और जवाहरात के जेवरात पहने हुए, शाही ताज ओढ़े हुए एक सफेद घोड़े पर सवार खड़ा था। इन लोगों की तरफ इनकी पुश्त थी और वो मसीही फौज में से था। इसका लिबास, जेवरात सब राज़िक जैसे थे और घोड़ा भी ऐसा ही था जैसा राज़िक का लड़ाई वाला घोड़ा था। राज़िक के इस घोड़े का नाम ऑरेलिया था। ये लोग और भी हैरान होकर इस सवार की तरफ देखने लगे। एक ढीली अबा वाला आया और उसने लड़ना शुरू कर दिया। मसीही को नेसा लगा और इसने घूम कर देखा। उसकी सूरत बिल्कुल राज़िक से मिलती जुलती थी। तकलीफ की वजह से इसका मुंह बना हुआ था। बिल आखिर वो घोड़े से गिर पड़ा और गिरते ही उसकी लाश नजरों से गायब हो गई। इस दहशतनाक मंजर को देखकर ये सब परागंदा और हवास बाख्ता हो गए। उन्होंने देखा कि तमाम कमरा एक अजीब सी रोशनी से भर गया है और दम बदम रोशनी बढ़ती चली जा रही है। रोशनी ऐसी बढ़ी कि आंखें चुंधिया गईं। उसी वक्त संदूकचा में से आग का एक शोला निकला और तमाम संदूकचा जलने लगा। ये लोग बदहवास तो हो ही गए थे और खौफ
खौफसदा हो गए और वहाँ से बेतहाशा भाग खड़े हुए। इनके भागते वक्त मेज में भी आग लग गई और इसके साथ ही निहायत होलनाक कड़ाके की आवाज आई, जैसे कहीं बिजली गिरी हो या कोई चट्टान ही फट गई हो। इस होलनाक आवाज को सुनकर इनके रहे सहे हवास भी जाते रहे और वो और भी तेजी से भागे। जब वो इस कमरे से निकलकर उस कमरे में आए जहाँ पीतल का बुत खड़ा था, वो ये देखकर हैरान रह गए कि बुत गायब था और जिस जगह बुत रखा हुआ था वहाँ जमीन फट गई थी और एक गार नमूदार हुआ था। जब वो झपट कर इस गार के किनारे पहुंचे तो इसकी नजर गार के अंदर जा पड़ी। उन्होंने पीतल का बुत इसके अंदर पड़ा हुआ देखा। इसकी आंखें उस वक्त मजीद सुर्ख हो चुकी थीं। अभी ये लोग इसे देख ही रहे थे कि इस बुत का मुंह खुला। एक मुहिब आवाज इसके मुंह से निकली जो वाज़ेह तौर पर ऐसी थी जैसे कोई देव कह कहे लगा रहा हो, या तूफान आ गया हो या बादल होलनाक आवाज में गरज रहा हो। इस गर्ज के साथ एक और तड़ाखे की आवाज आई। उस कमरे की छत जिसमें वो खड़े थे, संदूकचा और मेज था, गिरी और गिरते ही रोशनी और भी ज्यादा तेज हो गई। ये सब गार को कूद कर भागे और फाटक के करीब वाले कमरे से निकलकर दरवाजे को फलांगते हुए बाहर आए। उन्होंने बाहर आकर देखा कि दोनों बूढ़े मरे पड़े हैं। इन बेशुमार गैबी आफात के नजारों ने इनका दिल दहला दिया। वो बगैर इधर उधर देखे वहाँ से भागे और कलाह को से उतरकर अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए। जिस वक्त वो घोड़े पर भाग रहे थे उस वक्त उन्होंने पूरे गुंबद को जलते हुए देखा। आग के शोले निहायत ऊंचे उड़ रहे थे। दीवार के पत्थर, प्लास्टर का चूना और दूसरी चीजें चटख चटख कर दूर जाकर गिर रहे थे और जिस जगह गिरते वहाँ आग लगाते थे उस वक्त रात हो गई थी और गुंबद की आग के शोले तमाम चट्टानों को रोशन कर रहे थे। अब इन लोगों का वहाँ ठहरना दुश्वार हो गया था। उन्होंने घोड़ों को महमीसें लगाई और निहायत तेजी से रवाना हुए। इन परेशान कुन और होलनाक वाकयात को देखकर राजरक और इसके साथी निहायत खौफसदा हो गए। जब उन्होंने गुंबद को चलते और इसकी दीवारों को चटकते हुए देखा तो वो पहले से ज्यादा बदहवास और खौफसदा हो गए। उन्हें ये अंदेशा हो गया कि कहीं पत्थर का टुकड़ा इनमें से किसी के ऊपर आकर न पड़े और वो इनको भी खसो हाशा की तरह से तबाह बर्बाद न कर दे। इसलिए वो निहायत तेजी से घोड़े दौड़ाकर चल पड़े। रात काफी हो चुकी थी और हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। इस वजह से इनके घोड़े ठोकरें खाते चल रहे थे। इन लोगों के घोड़े इनसे भी ज्यादा खौफसदा और परेशान दिखाई देते थे। वो बगैर किसी किस्म के इशारे के खुद ही अपनी रफ्तार से भाग रहे थे। आखिर अल्लाह अल्लाह करके दरा खत्म हुआ और वो नशेबी घाटी की तरफ चले। गर्ज के जूं तू करके वो पहाड़ से नीचे उतरे और सरासिमगी के आलम में तली तला की जानिब रवाना हुए। जब कला करीब आ गया और उन्हें इत्मीनान हो गया कि अब कोई अंदेशा बाकी नहीं है तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उन्हें उस जगह जहाँ गुंबद चल रहा था आसमान पर रोशनी नजर आई। राज़िक बोला कि इस कदर वहशतनाक मंजर थे। वजीर ने कहा वहशतनाक भी और अजीबो गरीब भी। राज़िक ने कहा दरअसल मैंने इसे खजाना समझा था। वजीर बोला लेकिन मैंने हुजूर से अर्ज किया था कि खजाना नहीं है वहाँ। राज़िक बोला काश इस मनहूस गुंबद को मैंने न खोला होता। वजीर बोला मगर होना तो यही था। राज़िक ने कहा ये तो ठीक है लेकिन पता न चला कि ये कौन लोग थे जो कि इस फीते में नजर आए। वजीर बोला मेरे ख्याल में वो अरब थे। राज़िक ने कहा मुसलमान अरब? वज़ीर आज़म ने कहा जी हाँ। राज़िक ने अफसोसनाक लहजे में कहा तो क्या अंदलस पर हमला करेंगे मुसलमान? वजीर ने कहा मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने आपके सिपाही सालार को हजीमत दी है वो मुसलमान ही हैं। राज़िक बोला और ये ख्याल सही है क्योंकि जिस लिबास और सूरत के आदमी हमने देखे हैं गुंबद में ऐसे ही तदमीर ने अपने मरासले में लिखा था। वजीर ने कहा और हुजूर ये भी जानते होंगे कि ये कमबख्त मुसलमान जिस इलाके पर हमला करते हैं उसे फतह किए बगैर नहीं छोड़ते। राज़िक ने कहा हाँ यही बात सुनी है। इन बदबख्तों को काउंट जूलियन हम पर चढ़ा लाया है। वजीर ने कहा उसने निहायत नाआकबत अंदेशी का मुजाहरा किया है। वो नहीं जानता कि अगर उन्होंने अंदलस को फतह कर लिया तो सयूता को क्यों छोड़ देंगे। राज़िक ने कहा अफसोस ये है कि उसने ईसाई होते हुए मुल्क कौम से गद्दारी की है। वजीर ने कहा लेकिन जूलियन उस कमाश का आदमी नहीं था। उसे जरूर कोई ऐसा रंज पहुंचा है जिससे कि वो ऐसी नाजेबा हरकत कर बैठा है। राज़िक बोला रंज उसे क्या ये कम है कि उसका ससुर डंडरा तख्त से महरूम हो गया है। वजीर ने कहा बेशक ठीक फरमाया है आपने। इससे मालूम होता है कि माजूल बादशाह डंडरा भी इसका शरीकेकार है। राज़िक ने कहा यकीनन, लेकिन इन दोनों बदबख्तों ने ये कैसे समझ लिया कि मुसलमान अंदलस पर कब्जा करके किसी को भी तख्त पर बैठने देंगे। वजीर ने कहा ये उनकी बहुत बड़ी कम फहमी है। अब ये सब कला के दरवाजे में दाखिल हुए और खामोश हो गए। राज़िक चालाक था और वो ये चाहता था कि लोगों को असल हाल मालूम न हो क्योंकि इसमें उसकी भी रुसवाई थी। वो सारा इल्जाम डंडरा और जूलियन के ज़िम्मे इसलिए थोप रहा था ताकि अवामुन्नास के ख्यालात इन दोनों की तरफ खराब हो जाएं और वो इन्हें नफरत और हकारत की नजर से देखने लगे। किले के अंदर पहुंचते ही वो शाही कसर की जानिब चले। वहां पहुंचकर राज़िक घोड़े से उतरकर महल में दाखिल हो गया और बाकी लोग वापस चले गए।
जिस वक्त रासरक अपने कमरे में पहुंचा तो नायला को बैठे हुए देखा। वो गुंबद के वाकयात देखकर कुछ ऐसा खौफजदा हो गया था कि अब तक भी परेशानी और फिक्र की अलामात उसके चेहरे से जाहिर हो रही थीं। नायला ने उसे देखते ही कहा, कहिए खजाना दरियाफ्त हुआ? रासरक ने बैठते हुए कहा, वहाँ खजाना था ही नहीं। नायला ने कहा, और क्या था? रासरक बोला, कुछ भी नहीं, एक शोबदाबाजी थी, जादू निगारी थी। इसके बाद उसने तमाम वो वाकयात जो उसने गुंबद में देखे थे बयान कर दिए। नायला इन वाकयात को सुनकर हैरान हो रही थी। फातिह अंदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।